आपके CSS करने पे, ब्यूरोक्रेट बनने पे और आपको इंग्लिश में इतना अच्छा हाई स्कोर करने पे, आई वांट टू congratulate you. How does it feel? It feels great. Obviously, all of a sudden there's a change in my life. More than 18,000 candidates I was chosen. It's a big thing. बहुत सी आंखें आपके ऊपर अब लगी हुई हैं, you know. They want you to do something good. You want to prove yourself. मैं चाहती हूँ मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूँ लोगों के लिए, अपनी कैपेसिटी में मैं जो उनके लिए कर सकती हूँ मैं करूँ. मेरी कंट्रीब्यूशन यही होगी कि मैं लोगों की आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करूँ. And you're so young और अभी आपको एनर्जी लेवल भी आपके पास बहुत ज़्यादा है, so you can do much more than others. You work for information department. उसका क्या खास रोल होता है? Information department क्या करता है? It deals with the public relationing of the ministers, of prime minister, of the president. Okay. वो जो भी नए initiatives लेते हैं government आपकी, it is all about the public relationing. I feel कि ये मुझे बड़ा सही ग्रुप मिला है. हम overseas जो foreign countries होती हैं वहाँ पे भी हम पाकिस्तान की image को portray कर रहे होते हैं. Family का मुझे बताएं कितना ज़्यादा support रहा throughout this journey? मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे. Without this, nothing is possible. I'm the first one in my family who has done CSS. जब मैंने CSS के लिए प्रिपेयर किया तो I had locked myself in room. मुझे नहीं पता. मैंने सुना हुआ है, it actually happened. It happens. You're proud for them and I'm sure they're proud of you. और उनकी भी जो hard work था वो भी it all paid off. अभी भी they're investing in me. They're doing a lot for me. मैंने अब उनको पे ऑफ करना है. My father is just like my friend. Whatever people come across my life, I don't share much with my mother, but I share everything with my father. He is the guiding force. You're young, you're a bureaucrat, बहुत आप पढ़े लिखे हो. In your eyes, what do you call freedom for women? Every woman should have a passion. जो women अपने passion को मार देती हैं, they are not ambitious for. They're not free. Basically, freedom is from your mind. आपका mind में एक freedom होनी चाहिए कि मेरा ये जिंदगी का goal है, मैंने वो meet करना है, and that goal could be anything. Biggest challenge so far? CSS करना एक बहुत बड़ा challenge था, मगर अब क्योंकि मैं कर चुकी हुई हूँ, सब challenges छोटे लगते हैं. Hi viewers, this is Nadia Sajid. We feel very happy. आज हमारे साथ मौजूद हैं तहरीम एहसान जो कि ब्यूरोक्रेट है. उन्होंने रिसेंटली CSS पास किया. यू फील सो गुड कि किसी फीमेल ने CSS किया, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है. सो ना कि सिर्फ उन्होंने पास किया बल्कि उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया इन इंग्लिश और दे मेड शी मेक्स अस फील सो प्राउड अबाउट इट. आज उनसे हम बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम तहरीम. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू डूइंग? ग्रेट. हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक. आप बताएं क्या कर रही हैं आजकल? आप इस्लामाबाद में हैं? आजकल मेरी ट्रेनिंग चल रही है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इस्लामाबाद में. तहरीम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू आपके CSS करने पे, ब्यूरोक्रेट बनने पे और आपको इंग्लिश में इतना अच्छा हाई स्कोर करने पे. आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू. बताएं कि हाउ डज इट फील? Thank you so much. It feels great. Obviously, all of a sudden there's a change in my life. पहले आप एक normal regular ज़िंदगी गुजार रहे थे, but जब result आया तो after my result there was attention on me कि एक बहुत बड़ी achievement after like out of more than 18,000 candidates I was chosen. So I feel blessed. It's a big thing. It's a big thing. It's a big thing indeed. तो all of a sudden life has changed. लोगों ने बहुत ज़्यादा importance दी, बहुत ज़्यादा आगे मुबारकबादें दी. तो शुरू में तो मैं सच बताऊं यकीन ही नहीं आता था. And currently like when I'm undergoing my training and I was at different institutes, so I just think about this that this is something I had dreamt about, you know, and I'm living that life. So alhamdulillah, I can't thank Allah enough कि अल्लाह ने मुझे इतना bless किया कि मैंने जो सोचा था, जो मैं करना चाहती थी, जिसके लिए मैं enthusiastic थी, वो मैंने finally accomplish किया. आजकल हर जगह यही बात चल रही है कि dream big. You know, you have to have a passion and then spend your time and energy towards that. So वही आपने भी prove किया कि you always had this passion कि you want to be in power. You know, it's not a bad thing. You want to be in power. You want to do a lot of things as a female. और उसके लिए you worked very hard and it paid so well. अल्हम्दुलिल्लाह. Not just you passed बल्कि एक आपका नाम आया बहुत ज़्यादा कि आपने बहुत top score किया है. बहुत अच्छा feeling हुआ होगा, I'm sure about it. Yes. So कैसी फीलिंग आ रही है being a bureaucrat, you know, at this young age and being a female with this authority and everything? How does it feel? Alhamdulillah, it feels great. जैसे मैंने कहा पहले तो कभी यकीन ही नहीं आता कि वो मैं एक environment में थी कि I have to study. I used to spend a lot of time with my family, but अब मैं एक ऐसे environment में आ गई हूँ, मेरी life इतनी busy और hectic हो गई है, I barely get time to spend with them. और फिर लोगों का मैंने मतलब I was someone मतलब
अ लिटिल बिट एंटी सोशल, इतनी एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, इंट्रोवर्ट थी, मगर अब मेरे दिन का कोई ऐसा दिन नहीं होता, ऐसा लम्हा नहीं होता कि मुझे किसी को मिलना ना पड़े. सो आई हैव टू मीट एवरीवन. सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे सिर्फ रात को रेस्ट करने का टाइम मिलता है, तो माई लाइफ हैज़ चेंज लाइक विद इन अ फ्यू मंथ्स. इट्स अ गुड फीलिंग कि रोज़ सुबह आप उठो और आपको पता हो कि इतने लोग और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर वेट कर रही हैं, Yes. एंड यू हैव टू डू इट. और आप कुछ सिस्टम में बीइंग अ Yes. फीमेल बहुत कुछ आप अपने सिस्टम में आपसे ऐसा कुछ देख रहे होगे which was not right, and you can do something about it to make it right. Yes, this is what I feel daily, that whenever I like wake up daily, so I think about those people. जब मैं किसी का पढ़ती हूँ कि किसी को job opportunity नहीं मिल रही या कोई किसी चीज़ से deprived है, या मैं अपनी family को देखती हूँ, तो I think कि उनकी दुआओं से मैं यहाँ पहुँची हूँ. So I have to do something for these people. बहुत सी आंखें आपके ऊपर अब लगी हुई हैं, they want you to do something good. Inshallah. Yeah, but you want to prove yourself. Absolutely. I want to contribute for something. मैं चाहती हूँ मैं कुछ contribute करूँ लोगों के लिए, अपने इर्द गिर्द वाले फैमिली वाले लोगों के लिए भी, उसके इर्द गिर्द जितने भी डिप्राइव्ड लोग हैं, अपनी कैपेसिटी में मैं जो उनके लिए कर सकती हूँ मैं करूँ. अगर किसी को कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़रूरत है वो प्रोवाइड करूँ, किसी को अगर एजुकेशन सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है वो प्रोवाइड करूँ. मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन यही होगी कि मैं लोगों की आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करूँ. एंड यू आर सो यंग, और अभी आपको एनर्जी लेवल भी आपके पास बहुत ज़्यादा है, सो यू कैन डू मच मोर Yes. देन अदर्स. फैमिली का मुझे बताएं कितना ज़्यादा सपोर्ट रहा थ्रू आउट दिस जर्नी. फैमिली का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे. विदाउट दिस नथिंग इज़ पॉसिबल. Nothing is possible. बल्कि what I would tell you is that I have broken norms of my family. I'm the first one in my family who has done CSS. This has become possible entirely because of my parents. जब मैंने CSS के लिए prepare किया तो I had locked myself in room. मुझे नहीं अच्छा? पता था मैंने सुना हुआ है, it actually happened. It happens. मुझे नहीं पता होता था मेरे इर्द गिर्द बाहर क्या हो रहा है या फैशन के ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं मेरे पास. ऑल्दो मुझे सबका बहुत शौक है, मगर मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं सोशल मीडिया भी देख सकूं. सो ये सब पॉसिबल तभी होते जब सपोर्टिव फैमिली आपकी लाइफ में हो, और मेरी सपोर्टिव फैमिली मेरे पेरेंट्स थे. और एट द टॉप ऑफ ऑल, जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाती थी या मैं अपना इंटरव्यू देने जाती थी, तो मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर प्रेयर मैट से उठती नहीं थी, और मेरे फादर ही यूज्ड टू accompany me in the written exams as well, and in the interview he used to, although he has so much work. So entirely ये मेरी सक्सेस है ही मेरे पेरेंट्स की वजह से. मैं बल्कि मिलके एफर्ट थी. मैं बल्कि कहती हूँ मेरा हार्ड वर्क ने इतना पे ऑफ नहीं किया जितना मेरे पेरेंट्स की प्रेयर्स ने और उनकी एफर्ट्स ने पे ऑफ किया है. एंड डेली व्हेनेवर आई वेक अप आई टेल दिस कि आई हैव डन दिस बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. मैं आज यहाँ पहुँची हूँ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. और आई डोंट थिंक किसी के पेरेंट्स इतने सपोर्टिव होते हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि they have been. You're proud for them, and I'm sure they're proud of you. और So- उनकी भी जो हार्ड वर्क था वो भी it all paid off. तो मेरे हाँ, लिए रोज बिल्कुल. ये जैसे मैंने कहा ना, बर्डन होता है कि अभी भी दे आर इन्वेस्टिंग इन मी, दे आर डूइंग अ लॉट फॉर मी. मैंने अब उनको पे ऑफ करना है, और मेरे फादर का ये टारगेट है कि दैट आई हैव टू हेल्प पीपल आउट ऑफ द वे जाके. माई फादर इज जस्ट लाइक माई फ्रेंड. वट एवर पीपल कम अक्रॉस माई लाइफ, और वट एवर इंसिडेंट्स हैपन विद मी, और इवन इफ आई एम इन इस्लामाबाद, सो डेली आई कॉल हिम. I don't share much with my mother, but I share everything with my father. Beautiful. And I ask him for the advices, like what would you suggest मैं इसमें क्या करूँ. तो basically he is the guiding force. And you're 4 sisters and you're the youngest one. Yes. और इस सब के बावजूद भी इतनी ज़्यादा आपको तवज्जो दी जाती है और इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्यार देते हैं, अटेंशन देते हैं, फ्रीडम दी है. Yes. जो आपका दिल चाहा जिस प्रोफेशन में जाने की उसकी आपको इजाज़त दी है. सो आई रियली होप एंड प्रे कि सब आप अगर ऐसे हो जाए, so the world will be beautiful. मैं बल्कि ये बताना चाहूँगी कि जब मैंने इनिशियली सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो मुझे तब हिट किया कि अब मैं वाकई एक ब्यूरोक्रेट बन गई हूँ. अब मैं वो अपने माँ बाप की पैम्पर्ड बच्ची नहीं रही कि हाँ. जिसके लिए हर बार लग्जरीज इर्द गिर्द होंगी, लग्जूरियस रिसोर्सेज होंगे. मेरे पेरेंट्स अभी भी बहुत कहते हैं, मगर मुझे अब अपनी ट्रेनिंग्स में उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, adhere करना पड़ता है. तो अब मुझे फील होता है कि
ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत आज़ादी दी हुई थी। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा रहा है, लाइक माई सिस्टर्स एंड आई कुड डू एनीथिंग, वी कुड गो वेरेवर वी फील लाइक। मगर यहाँ पे जब मुझे बिल्कुल होता है ना कि अब मैंने इसी टाइम पे जाना है और इसी टाइम पे वापस आना है, और मेरे जितने भी बॉसेज हैं, सीनियर्स हैं, नो मैटर व्हाट दे से मी, मुझे वो सुनना है। मुझे अब रूल्स को ज़्यादा एडहियर करना पड़ता है। आज़ादी की आप बात कर रहे थे, सो तहरीम, यू आर यंग, यू आर अ ब्यूरोक्रेट, बहुत आप पढ़े लिखे हो। In your eyes, what do you call freedom for women? I believe freedom for women is something every woman, first of all, I say, should have a passion. ठीक है, जो women अपने passion को मार देती हैं, they are not ambitious for, they are like, not free. They are not free. Basically, freedom is from your mind, right? And first of all, आपका mind में एक freedom होनी चाहिए कि मेरा ये ज़िंदगी का goal है, मैंने वो meet करना है, and that goal could be anything. आपने कोई business venture start करना है, आपने कोई job join करनी है, और उसके बीच में जो hurdle आ जाए उसको मैं कैसे, उसको फ्रीडम नहीं कहते, उसको बिल्कुल उसको हर्डल को फ्रीडम नहीं कहते, मगर उसको कैसे मैं सेंसिबली उसको मैं टैकल करूँगी कोई हर्डल को, तो वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम डाउन होके, सो वो मुझे लगता है ये फ्रीडम है। मैरिज, you think it's a hurdle between freedom? No, not at all. I believe what I have seen so far in my surrounding, कि if you have a supportive husband, like my father has been a supportive husband, what I have which seen, is very rare. My mother, yes, which is very rare. My mother is also a government servant, and I have seen my father supporting her a lot. And to be very honest, one of the reasons for joining civil services was that I saw a beautiful career of my mother. She has undertaken some foreign trainings as well, and the way people used to give her respect because of her government job, so this motivated me as well, and this was not possible. And the way your father supported her. Absolutely. I remember when my mother, she went for her training to Malaysia and US, so my father, he had like 4 daughters, he always said, you just go, I'll take manage, care of them. and he used to manage each and everything. So मुझे लगता है एक इंटरव्यू आपके फादर का भी बनता है। Absolutely. I have to talk to him. Yes. कि पाकिस्तान में ऐसे आदमी बहुत कम नजर आते हैं, और वो इसीलिए वो मेरी मदर के लिए भी बहुत सपोर्टिव रहे और वो अपनी 4 डॉटर्स के लिए भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं। तहरीम, मुझे बताएं, अगर आपको अथॉरिटी मिल जाए, सोचें कोई कहे कि जी यू कैन चेंज वन सिस्टम, वन थिंग, जो आपको बहुत कोई बॉदर कर रही है इन अ डे, क्या करना चाहोगे? वैसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं मैं जो चेंज करना चाहूँगी, मगर कंसिडरिंग मैंने हमेशा हेल्थ को प्रायोरिटी दी है। अपने इर्द गिर्द लोगों की भी जब हेल्थ डाउन होती है तो मैं सबसे ज़्यादा अफेक्ट तब होती हूँ। मेरा दिल करता है कि मुझे ऐसी अथॉरिटी अगर मिले तो मैं हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम करूँ। एक छोटी सी प्रॉब्लम के पीछे अपनी जान दे बैठते हैं। कोई ऐसी चीज़ कि जिसके ऊपर दिल करता हो कि बस आग लगा दो, बहुत गुस्सा आता हो सो फार? बिल्कुल ऐसा सिस्टम है। अब क्योंकि मैं बिल्कुल गवर्नमेंट में आ चुकी हुई हूँ तो मुझे वो रेड टेपिज्म नज़र आता है कि आपने अगर कोई एक ऑर्डर इशू करवाना है सो वो आपको एक प्रॉपर फाइल मूव ऑन करनी है, सर्टेन स्टेजेस को पास करके जानी है, तो मुझे ये मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग। तो मुझे अब एक वो अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ती है, वो फाइल पुट अप होती है, एंड इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इसको मैं ना बस कुछ करके चेंज करूँ जल्द से जल्द। इस पे गुस्सा आता है। बिगेस्ट चैलेंज सो फार? मुझे लगता था मेरे लिए आज से 1.5 साल पहले CSS करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मगर अब क्योंकि मैं कर चुकी हुई हूँ सब चैलेंजेस छोटे लगते हैं। अब मैंने अपना इंटरव्यू CSS का दे दिया है और उसमें था कि आई हैड टू सिट इन फ्रंट ऑफ लाइक 4 फेडरल सेक्रेटरीज, फॉर्मर सेक्रेटरीज। तो उस टाइम आई वाज लाइक शेकिंग अ लॉट, आई वाज वेरी मच कंफ्यूज्ड इवन इफ आई हैड प्रिपेयर्ड अ लॉट। मगर अब गोइंग टू लाइक मीट एनीवन, any person and speaking like any moment, even if I'm not prepared, it's not a big task for me. I can do that instantly. तो मेरे ख्याल से वो उस बड़े चैलेंज ने मुझे इसकी तरफ जो है वो प्रिपेयर किया। चैलेंज नहीं लगती बिल्कुल। तो मुझे बहुत से डिपार्टमेंट्स का पता है CSS के बारे में, बट यू वर्क फॉर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, व्हाट इज दैट? उसका क्या खास रोल होता है? इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट क्या करता है?
Information department basically deals with media. It deals with the public relationing of the ministers, of prime minister, of the president. okay. उनकी relationing आपने करनी है, उनकी आपने publicity करनी है, वो जो भी नए initiatives लेते हैं government आपकी ministers, आपने उनको publicize करना है, आपने आवाम को उनके actions के बारे में बताना है, आपने उनको promote करना है. Moreover, जितनी भी advertisement agencies होती हैं, आप अपने इर्द गिर्द जितने भी billboards देखती हैं, आप टेलीविज़न देखती हैं, आप सब कुछ, तो ये उनके जितने भी होते हैं एडवर्टीजमेंट्स अप्रूव कंपनीज बिग इंडस्ट्रीज़ के वो हमने करने होते हैं. ठीक है, दैट कम्स अंडर आवर डोमेन, राइट. उसके अलावा आपकी मिनिस्टर्स की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, एट द सेम टाइम बहुत सेंसिटिव भी है. तो इसलिए तो हमारा वो काम होता है कि डे एंड नाइट का हमें बड़ा, मगर वंस यूर इनटू इट आपको आदत हो जाती है करने की. इट्स नॉट अ बिग टास्क फॉर यू. कि फॉर एग्जांपल आपके किसी भी मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है, तो उसका सारा मीडिया टीम मैनेजमेंट, उसकी प्रेस रिलीजेस, उसका ईच एंड एवरीथिंग यू वुड बी डीलिंग. इसमें आपकी न्यूज़पेपर्स की जो ऑडिटिंग होती है, इसमें वो भी आ जाती है. इट इज़ ऑल अबाउट द पब्लिक रिलेशनिंग. और व्हाट आई फील कि ये मुझे बड़ा सही ग्रुप मिला है. आई एम दिस काइंड ऑफ अ पर्सन. मुझे लोगों से इंटरैक्ट करना, रिलेशनिंग करना, पब्लिक रिलेशनिंग करना बहुत अच्छा लगता है. तो दिस ग्रुप इज एंड यू मस्ट बी गुड एट इट, दैट्स व्हाई दे चोज यू फॉर दिस probably. फर्दरमोर इंफॉर्मेशन ग्रुप ये भी करता है कि हम यहाँ पे तो मीडिया को डील कर रहे होते हैं, मगर हम ओवरसीज़ जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे भी हम पाकिस्तान की इमेज को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं. हमारे वहाँ पे प्रेस अटैचेस की, प्रेस काउंसलर्स की पोस्टिंग्स होती है, तो वहाँ का जो फॉरेन मीडिया होता है उनसे हम डील कर रहे होते हैं. पाकिस्तान में जो डेली एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं हम उनको वहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं, वहाँ के मीडियाज़ में वो प्रिंट होती हैं, और लाइकवाइज हम वहाँ के मीडिया के एक्टिविटीज़ यहाँ पे वो करते हैं. तो हमारा वो डिप्लोमेट्स के साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहता है. तो ये भी एक चीज़ है कि इंफॉर्मेशन ग्रुप इस चीज़ से डील करता है. वेरी गुड एट इट. बल्कि आपको काफ़ी रिसेंटली सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिले हैं. जी बिल्कुल. रिसेंटली मेरी कॉमन ट्रेनिंग हुई थी. कॉमन ट्रेनिंग इज़ बेसिकली आप जब सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हो तो वो जितने भी कॉमनर्स होते हैं वो वहाँ पे इंटरैक्ट करते हैं. वहाँ पे हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़, हमारे कुछ कोर्सेज होते हैं, स्टडी कोर्सेज गवर्नेंस से रिलेटेड, वो हमें पढ़ाए जाते हैं. तो वहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशंस बहुत होती थी. ठीक है, ऑब्वियसली अब हम इस डोमेन में आ चुके हैं. वी हैव टू गिव प्रेजेंटेशंस इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स. तो वो हमें इमरान खान के सामने कभी प्रेजेंटेशन दिया? आई विश, दिस इज़ माई बिगेस्ट ड्रीम कि मैं तो अभी तक नहीं अभी तो बिकॉज मैं अपनी ट्रेनिंग में ही थी, स्पेशलाइज ट्रेनिंग में, सो ऑल ऑफ अ सडन नो कॉन्फिडेंस का वोट हो गया. बट अभी तक उनसे हमें इंटरैक्ट करने का चांस नहीं मिला. सो तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशंस के 2 अवार्ड्स विन किए हैं, मुझे मिले हैं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में. एक बेस्ट करंट इशू प्रेजेंटेशन और एक बेस्ट बुक रिव्यू प्रेजेंटेशन. सो ये मुझे लगता है मेरी इसलिए अचीवमेंट है. पहली बात कि सबको नहीं मिलता, और दूसरी बात दूसरी बात कि 2 प्रेजेंटेशंस के लिए, क्योंकि मेजरली वहाँ पे यही हुई थी. अभी रिसेंटली मेरा एक स्पीच कंपटीशन इस्लामाबाद में हुआ, तो उसमें भी मैंने एक प्राइज़ जीता, अपनी सेक्रेटरी ने मुझे दिया. तो दैट वाज आल्सो रिलेटेड कि हाउ आई परफॉर्म्ड, हाउ आई स्पोक. सो ये मुझे इसलिए अकम्पलिशमेंट लगती है अपनी. दिस इज़ ब्यूटिफुल एंड दिस इज़ रियली यूनिक, यू नो, कि इतनी चीज़ों में आपने जाके और सब में आप अवार्ड्स लिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट्स लिए जा रहे हैं. सो व्हाट डू यू डू फॉर दैट? क्या कोई अंदर ही कोई बहुत ज़्यादा टैलेंट है कम्युनिकेशन से रिलेटेड और सबसे रिलेटेड, या यू रियली वर्क हार्ड फॉर इट? कुछ पढ़ती हैं, कुछ बुक्स पढ़ती हैं, किस तरह से? हाउ इज़ इट पॉसिबल? बिकॉज आई वांट टू गिव अ मैसेज टू अदर people like you who are young and who want to do something great. तो कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? आई बिलीव मुझसे लोग बहुत पूछते हैं आप बहुत बुक्स पढ़ती हैं, मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट आफ्टर डूइंग CSS मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, ऑल्दो आई शुड बी. आई डोंट गेट टाइम एंड मेरा दिल करता है, इट्स माई पैशन टू रीड बुक्स, डाइवर्सिफाइड हिस्टोरिकल बुक्स. मगर मुझे लगता है कि मैं न्यूज़पेपर बहुत बाकायदगी से पढ़ती हूँ. और बचपन से पढ़ी थी? नहीं, बचपन से तो नहीं, मगर बचपन में क्योंकि मुझे शौक बहुत था. बचपन में मुझे शायद इतना पता भी नहीं था सिविल सर्विसेज है
क्या, मगर एक शौक था, मैंने करना है जो भी है, मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन करूँगी मैंने वो करना है। तो CSS करने से पहले मैंने पढ़ा, बचपन में ऑन एंड ऑफ रीड कर लिया करती थी, मगर असल उसकी अंडरस्टैंडिंग तब मुझे हुई जब मैंने CSS की प्रेपरेशन शुरू की। उसके अलावा आई बिलीव कि मेरी स्कूलिंग जिस तरह की हुई है उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए द वे आई स्पीक, और उससे हट के घर का माहौल लेके, आपके घर के माहौल में सब कैसे बात करते हैं, आप कैसे, आपके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा आपको टीच करते हैं, आपके एल्डर अगर सिबलिंग्स हो, मेरी बहनें तो वन ऑफ देम, तो शी यूज टू ऑल्सो गाइड मी के ऐसे बात करनी है। तो मेरे ख्याल से आपका स्कूलिंग, आपका फैमिली का माहौल। सो यू वर सराउंडेड बाय पॉजिटिव एंड सेंसिबल पीपल, Yes. और फिर उन सबसे आप थोड़ा थोड़ा पिक करती गई, थोड़ा पॉजिटिवली, then it became तहरीम। Yes, अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीम, any hobbies? Obviously इतना काम करना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ा, सब कुछ। Any hobbies which is very important, which makes you light, after a full day job? और हॉबी मेरी इस तरह है कि आई लव ट्रैवलिंग, तो अब मैं रिफ्रेश फील करती हूँ बैक एंड फोर्थ। Which is your favorite place? यूनाइटेड स्टेट्स और US में भी, न्यूयॉर्क। आई लव, So you're a city girl, huh? आई एम अ सिटी गर्ल। बिल्कुल। आई लव टू विजिट दैट प्लेस। तो मुझे आई लव टू सी डिफरेंट कल्चर्स, और डिफरेंट कंट्रीज में जाके उनके कल्चर्स आप देखो, वहाँ के लोगों की रहने की प्रैक्टिसेस देखो। मेरे ख्याल से You always learn from it. You always learn, and traveling overall gives you an exposure. मेरे ख्याल से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। ट्रैवलिंग इटसेल्फ ऐसी है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मतलब मैंने अभी बैक एंड फोर्थ इस्लामाबाद, लाहौर ट्रैवल किए जब से मैं वहाँ गई हूँ, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस जो लाहौर में नहीं था, अब वो उससे कई ज़्यादा हो गया। अब इंडिपेंडेंटली मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ जो चंद महीने पहले मैं नहीं करती थी। प्रायर टू जॉइनिंग सिविल सर्विसेज मैं अपने फादर को उनके बिजनेस में हेल्प कर रही थी। तो उनका एक बिज़नेस एग्रीकल्चर का भी है, तो हमारे एग्रीकल्चर फार्म्स है आउटस्कट्स ऑफ लाहौर में। तो वहाँ पे मेरी एक अचीवमेंट ये थी कि मैंने ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो थे उनसे हट के नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स ट्राई किए, जैसे कि टर्निप था, कोरिएंडर था, कैरेट्स थी, क्योंकि नॉर्मली उन फार्म्स पे ये क्रॉप्स नहीं होते। वहाँ पे वही वीट, राइस, जो टिपिकल क्रॉप्स होते हैं ट्रेडिशनल, वो होते हैं। तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुआ था। बट एट द सेम टाइम मेरा CSS का रिजल्ट आ गया, तो फिर मैंने ये परस्यू कर लिया। बट वो मेरी एक अचीवमेंट वो भी थी कि वो मैंने किया। किसी को तो आप तहरीम आइडलाइज करते होगे एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, कई दफ़ा आप इंटेंशनली नहीं करते, बट अनइंटेंशनली दैट बिकम्स योर रोल मॉडल, और आप उसी को फॉलो करते करते आज यहाँ तक पहुँच गए। सो हु डू यू थिंक इट वाज? Lots of women. Lots of women. Should I name them? Yeah, of course. One is Queen Rania. Okay. वो सबकी है, वो सबकी है। सबकी है। Even the way she dresses, she dresses, and she's sheer inspiration. Yeah, she's inspiration. And even if she's a monarch and she's a queen, but the way she is intermingling with everyone, जो वो out of the way जाके NGOs में जाती है, वो बच्चों के लिए, poor लोगों के लिए काम करती है, तो वो ना भी करे तो क्या है, she can live a luxurious lifestyle. She's an actual queen. She's actual queen. But वो queen पहन के, ताज पहन के वो ऐसे बैठी नहीं होती। She's going everywhere. She has her own style, her own aura. लोग follow करते हैं, follow करते हैं, बिल्कुल। And then another. She speaks even. Yes. Then another is Kate Middleton. Again, उसकी भी I think she has same qualities. कि she is a monarch. She has certain rules and regulations, but at the same time, the way she mingles with ordinary citizens. तो ये मुझे बात बहुत पसंद है। और अगर मैं पाकिस्तान में बात करूँ तो I really like our currently state minister Hina Rabbani Khan. So the way she dresses up, the way she carries herself, the way she speaks, although she has a normal voice. So I really hope, I really pray one day, आने वाली जनरेशन में कोई बच्चियाँ आपको एज एन इंस्पिरेशन फॉलो कर रहे हो, यू शुड ऑल्सो बिकम अ स्ट्रॉन्ग वुमन लाइक देम। इंशाल्लाह आई यू होप डू सो। ग्रेट थिंग्स, जिनके अपने नाम लिए हैं उनकी तरह कुछ बड़ी चीज़ें करें आप, दैट पीपल रिमेंबर यू एंड यू डू समथिंग ग्रेट। तरीम, एनी मैसेज बिफोर यू गो फॉर everyone, for all the students जो पढ़ रहे हैं, या young girls के लिए, या सबके लिए, any message you want to give? Message मैं यही देना चाहूँगी, first of all, one should be ambitious, one should have goals, positively ambitious, you should have like positive goals,
एंड एज आई सेड बिफोर, नॉट नेसेसरली कोई पढ़ाई से रिलेटेड गोल्स ही हो. इट कुड बी रिलेटेड टू मेंडिंग योर टाइज विद योर फैमिली. इट कुड बी related to for example doing walk daily or losing weight. It could be, you know, that goal as well. It could be related to your job, to your business, anything. One should have goal. आप गोल रखो और फिर उस पर कभी गिव अप नहीं करो. आप इंस्टेंटली कामयाब नहीं होगे. मैं भी बहुत ज़्यादा जब CSS की प्रिपरेशन करी थी डीमोटिवेट होती थी और बहुत सोचती थी इतने लोगों में मैं क्यों चूज होंगी और पता नहीं कैसे होंगी. और इतनी मेहनत कर रही हूँ, सबसे कट ऑफ किया है, अगर नहीं पास हुई तो क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, वो तो सब जाया गया ना. पता नहीं मुझे रिवॉर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा. बट एट द सेम टाइम आई हैड फेथ इन अल्लाह, आई हैड फेथ इन माई प्रेयर्स. मगर मैंने कंसिस्टेंटली, एक होता है ना वो आप कहते हो कि मैं डाउन होती थी मगर फिर मैं अपने आप के अंदर करेज लाती थी. कंसिस्टेंटली अपने गोल पे मैंने काम किया, आई अचीव्ड इट. तो मैं ये कहूँगी आपको ऑब्स्टैकल्स का सामना करना पड़ेगा अनडाउटेडली. तो आपको बट यू शुड सराउंड योरसेल्फ विद बिटवीन पॉजिटिव पीपल. अगर आपका गोल नहीं है लाइफ में कोई, देन दिस नो पॉइंट. और गोल जैसे आपने कहा, ओके, इट कैन बी इवन, यू नो, वर्क रिलेटेड हो सकता है. इट कैन बी इवन कि आपने अपना वेट रिड्यूस करना है या ज़्यादा करना है, व्हाटएवर. बिल्कुल. लेकिन वो गोल खत्म हो जाएगा. बिल्कुल. फिर कोई नया गोल बना लो. नया गोल बना लो. तो ये स्ट्रगल आपकी लाइफ में कंटिन्यू होनी चाहिए. अदरवाइज आपकी लाइफ का कोई चार्म नहीं होगा. आप वरना नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी में आओगे, लाइफ गुजारोगे, चले जाओगे. बट लोगों को भी याद रहना चाहिए और आपको खुद भी याद रहना चाहिए कि उसने सर्टेन गोल्स के लिए इतना स्ट्रगल किया, इतना स्ट्राइव किया और इनको मीट किया. तो मैं इतना कहूँगी कि बस पैशनेट होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए पॉजिटिवली, राइट. मगर ये नहीं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा अपना इतना ज़्यादा दिमाग लगा दो कि वो नहीं होगा तो आप नेगेटिव स्टेप्स लेना शुरू कर दो. अगेन मेरा एक बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई चीज़ नहीं हुई तो आई बिलीव कि अल्लाह की बहुत बेहतरी है. ये मेरा बिलीफ इस चीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज भी स्ट्रॉन्ग है. एंड देन यू फाइंड इट आउट आफ्टर couple of years or something कि हाँ इसलिए ये चीज़ नहीं हुआ था. तो अल्लाह ताला आपको फ्यूचर में दिखा देता है. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. बहुत अच्छा लगा आपसे बात के. एक तो यू आर अ फीमेल, यू आर डूइंग ग्रेट थिंग्स. एक तो यू आर सो यंग और बहुत अच्छा और जल्दी आप कर रहे हो. सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड रियली होप एंड प्रे कि आप बहुत आगे जाओ इंशाल्लाह. आपकी दुआएं चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच व्यूअर्स. आई रियली होप यू लाइक द शो. थैंक यू.